Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and this is a photograph by Shirley Tolson. 11th class के students के लिए this is the first poem for the students of class 11 and the title of the poem is A Photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson is the poetess. And you are watching three girls in this photograph. This is the frame of the photograph to this, and this is photograph in a frame, and you are also watching that behind these three girls there is sea, and this is sea beach, and you are watching wet sand here, and these girls are feeling very much excited and happy by feeling that cool touch of the sand and the water of the sea. Okay, this is the tallest of these three girls, and this is Shirley Tolson's mother. These are her cousins. And the age of Shirley Tolson's mother is hardly about 12 years. Okay, let's go ahead with this poem. A Photograph by Shirley Tolson. This video 1 of 2. A Photograph, ये title है poem का, and Shirley Tolson is the poetess. Okay, spelling of Tolson Toulson. Okay. Let's proceed further. The poetess Shirley Tolson, you are watching the photograph of Shirley Tolson, and she was born on 20th May 1924 in England. Shirley Tolson का जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था. I shall explain this poem in Hindi as well as in English. Let me tell you something about the poetess. Poetess के बारे में कुछ जान लेते. Shirley Tolson was born on the 20th May 1924 in England. Her father was a writer. इनके फादर एक राइटर थे, so she was also inspired to write. इसलिए वो भी एक पोएट बनी. She was inspired to write. In addition to it, इसके अलावा she was an editor to several magazines. कई magazines की वो editor भी रही हैं. The poetess was not born when the photograph was taken by her mother's uncle. जब इनके मदर के अंकल ने ये फोटोग्राफ क्लिक की थी, then the poetess was not born. पोएटस का जन्म नहीं हुआ था. She was of 12 years when her mother died. और 12 वर्ष की थी जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है. राइट, आगे बढ़ते हैं. Let me tell you something about the poem. कुछ पोएम के बारे में जान लेते हैं. This poem is about a universal theme, applicable to all. Universal means what is applicable to all. ऐसा थीम जो सब पे एप्लीकेबल है. मदर के बारे में आप जानते हैं, चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स. सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, स्पेशली टुवर्ड्स द मदर, खासकर मदर के प्रति. तो इस पोएम में शर्ले टोल्सन इज डिस्क्राइबिंग हर इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स हर मदर. अपनी मदर के प्रति वो अपनी अटैचमेंट शो कर रही है. As the poem is in the first person, we may assume that the poetess remembers her mother through a photograph that is almost reduced to a cardboard piece due to a long span of time. As the poem is in first person, poem first person में है, means I और me इसमें चलता है pronouns. तो हम assume कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि पोएटस एक फोटोग्राफ के माध्यम से अपनी मदर को याद करती हैं. ऐसी फोटोग्राफ जो बहुत पुरानी थी और एक कार्डबोर्ड की तरह रिड्यूस हो चुकी हैं. जैसे कोई गत्ता होता है, कार्डबोर्ड क्या होता है, गत्ता, और थिक पेपर होता है, और उसकी तरह वो मैली सी येलोइश हो चुकी हैं ड्यू टू लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. काफ़ी समय हो गया फोटो को. तो आप जानते हैं कि ये मदर जब 12 साल की थी तब ये फ़ोटो थी, और मदर ने पोएटस को ये जो दिखाई थी फोटोग्राफ कोई 20 या 30 वर्ष बाद दिखाई थी. अचानक मिली होगी उन्हें. Her mother died 12 years ago and now she picks up the old photograph because she might be feeling nostalgic about her mother. और मदर के गुजरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, she picks up that photograph just to remember her mother because she was feeling nostalgic. Nostalgic होता है जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, उदास हो जाते हो, you feel like
होम सिक जैसे होती है, घर की याद आती है। एंड शी वॉज रिमेम्बरिंग हर मदर, माइट बी मिसिंग हर मदर एट दैट टाइम। अपनी माँ को याद कर रही हैं कि उनकी माँ इस फोटोग्राफ को देख के कितना हंसी थी उस दिन जब पहली बार ये फोटोग्राफ उनको मिला था कहीं से, और खूब हंसी थी देख के कि देखो ड्रेस क्या पहनी हुई है। उनकी कजिन थी, उन्होंने, और अपने आप को भी देख के वो हंसती है। तो लेट मी go ahead now. It takes her back in the days when her mother very fondly used to describe the photograph and about those happy days when she was alive. Through this photograph, she goes into the days when her mother was very happy to see that photograph. और इस फोटोग्राफ के माध्यम से शार्लेट ओल्सन उन्हीं दिनों में चली जाती है जब उनकी मदर ने वो फोटोग्राफ दिखाई थी और कितनी खुश हुई थी वो। फॉन्डली होता है शोविंग ग्रेट लाइकिंग और लव, और फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे थे। एंड शी वाज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी टू रिमेम्बर दोज हैप्पी डेज व्हेन शी वाज अलाइव। और शार्लेट ओल्सन भी याद करती है उन दिनों को जब उनकी मदर जीवित थी और किस तरह से वो हंसती होती थी और घर में रौनक थी। घर में अब तो सन्नाटा है, ये चेंज आ चुकी है आफ्टर हर मदर, और वो शायद कभी हंसती भी नहीं होगी। शार्लेट ओल्सन उदास रहती है, साइलेंस रहती है घर में। अब आगे बढ़ते हैं और लेट मी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पोएम की। द कार्डबोर्ड शोज मी, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड इट स्टैंड्स फॉर द पोएटेस। मी स्टैंड्स फॉर पोएटेस। हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's, my Charlotte Olson's hands. Okay? तो कार्डबोर्ड फोटो के लिए आया। एक ये लड़की है और बीच में बड़ी लड़की है और ये छोटी, ये कजिन्स है और ये छोटी, ये कजिन्स है और ये मदर है। ठीक, तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। ये फोटो मुझे दिखा रही है, मुझे स्टैंड्स फॉर हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग होता है पानी में या किसी उसमें पैडलिंग करना, साइकिल के पैडल भी होते हैं, उनको चलाना भी होता है। बट वेंट थ्रू द वाटर ऑफ द बीच, सी बीच पे जा रहे थे, सी बीच में लहरें आ रही थी, तो दे वर गोइंग थ्रू द वाटर, दैट्स व्हाई दिस पैडलिंग वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर। व्हेन यू वॉक इन वाटर यू have to do some effort while walking. चलते हुए थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। therefore the word paddling has been used here. जब उनकी दो गर्ल कजिन्स, जो कजिन्स थी, उनके साथ पानी में जा रही थी, each one holding one of my mother's hand, इनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. So me stands for the poetess. Poetess कहती हैं कि ये कार्डबोर्ड उन्हें शो कर रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से दो गर्ल कजिन्स और द पोएटेस मदर पैडलिंग कर रही थी। मीन्स दे वर वॉकिंग थ्रू द सी वाटर ऑन द बीच। इस सी वाटर में से कैसे वो आगे बढ़ रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों कजिन्स ने मदर के हाथ को पकड़ा हुआ था। एक ये हाथ था और दूसरा ये हाथ, दोनों कजिन्स जो थी उनकी, उन्होंने दोनों हाथ इस तरह से पकड़े हुए थे। और एंड शी द बिग गर्ल, शी स्टैंड्स फॉर मदर। मदर वाज bigger, means she was tallest among these three girls. इन तीनों लड़कियों में वो tallest थी। some 12 और so, 12 या 13 वर्ष की होंगी। और so का मतलब she does not mention the exact age of her mother. She gives an estimation of her age. She might be of 12 years, she might be of 13 years. Okay. The cardboard shows the poetess Charlotte Olson as to how the two girls cousins were paddling along with her mother. They were going through some water, sea water on the sea beach, and each
cousin girl was holding her mother's hand in hers. और प्रत्येक cousin girl उनकी मदर का हाथ अपने हाथ में लिए हुए थे. And her mother was the tallest among these three. Okay, let's go ahead. Cardboard, stiff paper made for making boxes वगैरह गत्ता होता है ये. पैडलिंग यहाँ पे here it means to walk in shallow water. Shallow water जैसे लहरें आ रही है, इस तरह से लहरें चल के आती है. इधर रेत है, ये बीच है यहाँ पे, और यहाँ रेत है, तो यहाँ पानी आता है और चला जाता है. तो ये कम पानी है, शैलो डीप वाटर नहीं है, देयरफॉर शैलो वाटर कहा गया है यहाँ पे. एट बीच विद नो शूज एंड सॉक्स. उन्होंने कोई शूज नहीं पहने हुए, कोई सॉक्स नहीं है, बिकॉज दे वांटेड टू एंजॉय द कूल टच ऑफ द वेट सैंड एंड सी वाटर. तो जो कूल टच था वेट सैंड का और सी वाटर का, वो फील करना चाह रहे थे. देयरफॉर दे डिडंट वेयर शूज एंड सॉक्स. Girl cousin, the girls who are the daughters of an uncle and an aunt in a family. ये उनकी girl cousin means यहाँ पे चाचा की लड़कियां हो सकती हैं, ताऊ की लड़कियां हो सकती हैं. Big girl का मतलब the girl who is elder or the tallest one among them. या तो वो उम्र में बड़ी इसलिए big यूज किया है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है वो लंबी थी उनमें. दोनों मतलब इसके big girl के निकलते हैं यहाँ पे. Now let me explain these lines. The poetess picks up the cardboard photograph of her mother. Poetess अपनी मदर का जो फोटोग्राफ है उसको पिकअप करती है with her two girl cousins, जिसमें उनके साथ दो गर्ल कजिन्स हैं. It shows how her mother looked at that age. इससे पता चलता है कि उनकी मदर किस एज में थी और कैसी दिखाई दे रही थी. When she was hardly of 12 years. मुश्किल से वो 12 वर्ष की थी उस वक्त. There were three girls in the photograph. और 3 लड़कियां थी. One was the poetess mother. एक कवित्री की मदर थी. And the other 2 girls were her cousins. और ये जो 2 साइड में लड़कियां थी ये उनकी मदर की cousins थी. आगे बढ़ते हैं. They all were on a sea beach. ये सी बीच में थे. वॉकिंग इन द शैलो वाटर. शैलो वाटर में चल रहे थे. एट द बीच विदाउट सॉक्स एंड शूज. बिना सॉक्स के और शूज के. टू एंजॉय द कूल टच ऑफ द सी वाटर एंड सैंड बिलो देयर फीट. वो जो ठंडक होती है गीले सैंड में, गीले रेत में, और जो लहरों का पानी उनको टच कर रहा था उनके पैरों को, उसकी जो ठंडक थी उसको एंजॉय करना चाह रहे थे और बहुत ही खुश थी ये तीनों. द पोएटस मदर वाज द एल्डेस्ट ऑफ देम. पोएटस मदर उनमें बड़ी थी या फिर वो टॉलेस्ट थी उनमें. ईच ऑफ द गर्ल कजिन्स वाज होल्डिंग द मदर्स हैंड्स ऑन बोथ द साइड. दोनों साइड में जो लड़कियां थी मदर के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ था उन्होंने. दिस इज द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. The phrase some 12 years shows that the poetess was not definite about the exact age of her mother. ये जो phrase यूज की गई है 12 और so, 12 या इससे अधिक या कम, इससे क्लियर होता है कि the poetess was not clear about her mother's age at that time. She was just giving an estimation कि 10, 12 या 13 साल की होंगी. She might have been approximately of 12 years. लगभग वो 12 वर्ष की थी. Okay? Line 5 to 9 लेके चलते हैं. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. stanza पहले मैं आपको समझा देता हूँ. All 3 stood still. Still means यहाँ पे motionless, स्थिर. तीनों की 3 स्थिर खड़ी थी. बीच वाली लड़की भी और ये दोनों कजिन बिल्कुल बिना हिले जुले. Because they were posing for a photograph. क्योंकि एक फोटोग्राफ की वो पोज थी. To smile through their hair. और स्माइल करने के लिए पोज कर रही थी और स्माइल उनको चेहरे पे लानी थी. एंड द विंड वाज ब्लोइंग. हवा चल रही थी. देयरफॉर देयर हेयर वाज फॉलिंग ऑन देयर फेसेस. उनके जो बाल थे उनके चेहरों पे गिर रहे थे. चेहरों और अंकल के बीच में बाल आ रहे थे तो उनके जो होंठ थे वो थोड़े ढके हुए थे. Therefore the poetess says that she was smiling through their hair. They were smiling through their hair. अपने बालों के बीच में से स्माइल कर रही थी.
एंड अंकल वाज होल्डिंग द कैमरा। और फिर वो कहती है कि हर मदर्स फेस वाज स्वीट, उनकी मदर का जो चेहरा था स्वीट था। और ये कब की बात है? दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जब इनका जन्म नहीं हुआ था। और एंड द सी, समुद्र के बारे में कहती है, which appears to have changed less, जो अब तक बहुत ही कम बदला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। C stands for nature here, नेचर का प्रतीक है, नेचर में इतना बदलाव नहीं आया। Only we mortal, ये जो feet है, feet stands for human beings, all human beings are mortals, सभी ह्यूमन बींग्स मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं, एक न एक दिन उन्हें मृत्यु आती है। तो एवरी क्रीचर ऑन दिस अर्थ इज मॉर्टल। तो ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि दे लिव फॉर सम लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे वो कुछ लिमिटेड वक्त के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और जो समुद्र था जो बदला नहीं है, दैट वाज वॉशिंग देयर फीट, लहरें आ रही थी और उनके पैरों को टच करके वापस जा रही थी। द सी वाटर was coming towards their feet, it was touching their feet and then it was subsiding, it was going back, लहरें आ रही थी और जा रही थी, ये इस सेंस में कहा गया। वर्ड मीनिंग still means motionless without moving, terribly means extremely, transient means mortal, temporary that is for a short span of time, जो कम समय के लिए जीवित रहते उन्हें ट्रांजिएंट कहते हैं। कोई भी चीज कम समय के लिए आए उसे ट्रांजिएंट कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल द थ्री गर्ल्स स्टूड मोशनलेस टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों लड़कियां स्थिर खड़ी थी और स्माइल कर रही थी अपने बालों में से, बाल सामने आ रहे थे उनके ड्यू टू some wind, because the wind was blowing when their uncle was about to click the photograph from the camera। जब कैमरा से उनके अंकल क्लिक करने वाले थे तो बाल बीच में आ रहे थे। therefore the poetess has described they were smiling through their hair। The words smile through the hair show that the wind was blowing the hair that was falling on their faces। हवा चल रही थी और फेस पे उनके वो बाल आ रहे थे। तो आंखें जैसे ये हैं आंखें, तो और ये नाक हम सपोज कर लो, और ये लिप्स हैं उनके, और ये स्माइल उनके चेहरे पे आ रही, तो बालों में ढकी हुई थी, ये बाल उनके बार बार आ रहे थे। इस तरह से आप कल्पना में कर सकते हो। So the moving hair might have been covering the lips also, that's why the word through has been used here। तो बाल उनके लिप्स पे आ रहे थे, इसलिए ये स्माइलिंग थ्रू वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। The poetess says that her mother's face was sweet। poetess कहती है कि उनकी माँ का जो चेहरा था स्वीट था उस समय। When she was not born, जब कवित्री की शार्लेट ओल्सन की का जन्म नहीं हुआ था। It went through a change after that, बाद में उनके चेहरे पे बदलाव आया। जब ही तो समुद्र और मदर के फेस में चेंज के बारे में बात होती है। ट्रांजिएंट फीट वर्ड यूज किया गया। It went through a change after that with the passage of time। With the passage of time everything changed with mother। Now mother is no more with her, with Charlotte Olson। Her mother has passed away, she has died। This is the big change for her, shocking change for her। ये उसके लिए सदमा है, बहुत बड़ा बदलाव है। उम्र के साथ साथ आप जानते हैं कि चेहरे पे बदलाव आता है, बॉडी शरीर में बदलाव आता है, तो इस सेंस में ये ट्रांजिएंट हीट कहा है, ये चेंज कहा है। वन ग्रोज ओल्डर एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो आदमी बूढ़ा होता रहता है। बट द सी हैज अंडरगोन लेस चेंजेस, समुद्र में कम चेंज आई हैं। Since that day on which the photograph was clicked, जिस दिन वो फोटोग्राफ क्लिक की थी तो उस दिन के बाद अब तक समुद्र में बहुत कम बदलाव आया है। The sea that washed their terribly transient feet has undergone very less changes। और समुद्र that washed their terribly transient feet, जो उनके ट्रांजिएंट शॉर्ट लिव्ड फीट को वॉश कर रहा था, लहरें उनके पैरों में टच कर रही थी, उसमें बहुत कम चेंज आई है। लेस चेंज हैज अकर्ड इन देम। हियर द सी स्टैंड्स फॉर नेचर, समुद्र यहाँ पे सिंबल है नेचर का। दैट इज लॉन्ग लिव्ड, नेचर लंबे समय तक रहती है। एंड द मदर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ दैट इज मॉर्टल, और मदर ह्यूमन लाइफ को शो कर रही है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और एज यू नो एवरी ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, सभी मरणशील हैं, ग्रो करते हैं,
फिर उसके बाद डिके होता है और डेथ आती है। टाइम हैज इट्स रेवेजिंग इफेक्ट ऑन मॉर्टल थिंग्स ओनली। टाइम का जो रेवेजिंग इफेक्ट है, विनाशकारी प्रभाव है, वो मॉर्टल चीजों पे ही पड़ता है, जो कुछ समय के लिए होती है। जो फिजिकल वर्ल्ड है उस पे ही ये प्रभाव पड़ता है टाइम का। द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, देयर इज अलिटरेशन इन द वर्ड्स। अलिटरेशन जैसे क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स एक के बाद एक या गैप्स में आती हैं, एक ही साउंड से बिगिन करते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे ये टा साउंड है, ये भी टा साउंड है, टेरिबली ट्रांजिएंट, दिस इज कॉल्ड अलिटरेशन। Alliteration is a poetic device by which the poet uses several words closer to each या one another beginning with the same, usually the consonant sound। आमतौर पे consonant sound से words begin होते हैं और same होते हैं। ओके, लाइन 10 to 15 इसे कल करेंगे।